सो देखिए, अभी तक के सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था इम्प्लिसिट इंटेंट में कि हम लोग अगर कोई यूआरएल ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करेंगे, किसी को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन करना है या कॉन्टैक्ट अस पे काम करना है तो कैसे करेंगे, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट इम्प्लिसिट इंटेंट विच वी परफॉर्म्ड अर्लियर, राइट. But suppose we wants to like open our camera and just take a picture from the camera, so how we can do the same? So in order to achieve this concept, just I am going to create another button here, right? So just copy this button and paste it here. So let's change the name camera capture, right. So this is camera capture button, and create a method for the same name camera, right. And just select it and hit alt and enter and create a method with the same name camera, right. So what I am going to do here, just create another image view in the bottom, right. So after this button I'm just going to take a image view here, image view, right. And the width and height of this image view is the nothing but a match parent, and take a static image src is equals to IC launcher, right. So my requirement is when we hit on this camera capture button, so our camera is automatically on and it's take a picture and put this picture information here. This is my requirement. So how we can do the same? So just we have to write this logic here actually in this method, in this camera method actually, right. So first of all I'm going to take a image view variable here. You can see already I have taken an image view variable here, and one static variable camera request. You can take any value here. You can take a 200, 300, 400, any information here. Then we need to find the ID of this camera. So here image view. So here I get the ID of this image view. यहाँ पे आप देख सकते हैं image view की ID क्या है. इमेज व्यू की आईडी मैंने अभी यहाँ दिया नहीं है. लेट मी प्रोवाइड द आईडी दैट इज इमेज. यस, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, इमेज लिया हुआ है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड बाय विच वी कैन डू द सेम फंक्शनैलिटी. वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंट. सो हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इंटेंट क्लास के अंदर एक स्टैटिक कांस्टेंट होता है. मीडिया स्टोर के अंदर हमारे पास एक स्टैटिक कांस्टेंट होता है इमेज कैप्चर, राइट. सो वी हैव टू कॉल दिस पर्टिकुलर स्टैटिक इम्प्लिसिट इंटेंट एक्चुअली. तो इस इंटेंट की कॉल करने से आपका जो बटन की क्लिक करने से ही आपका जो इमेज है वो पॉपअप होके आ जाएगा, मतलब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा. एंड बट वी हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटी फॉर हियर, बट वी डोंट नीड टू कॉल दिस स्टार्ट एक्टिविटी ओनली. वी हैव टू कॉल द स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड. सो दिस मेथड वेटिंग फॉर द रिजल्ट. हियर वी हैव टू पास द इंटेंट ऑब्जेक्ट एंड द कैमरा रिक्वेस्ट विच इज द वेरिएबल actually which we have created on the top actually. You can see this camera request static variable actually. So we are just passing the two information here. One is the intent information, another is the camera request information. So what it will do, when we click on the button camera capture, so it open our camera and it start an activity for you. So opening camera is nothing but starting an activity. And when camera is going to be open, definitely you have to take some picture over there. So when you take some picture, so you can receive this picture and set into your image view. So definitely we need some information from our camera activity. So that's why we are calling the start activity for result method.
सो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड क्या करता है, ये एक्टिविटी को स्टार्ट तो करता है बट किसी न किसी रिजल्ट के लिए वेट करता है. तो इट्स वेटिंग फॉर सम रिजल्ट फ्रॉम द कैमरा, राइट, फ्रॉम द कैमरा साइड. सो व्हाट वी हैव टू डू, so we have to override a method that is on activity result method. Actually we have to override this method on activity result. So this on activity result method basically automatically called when this start activity for result method is invoked, because इस method के कॉल होने से क्या होगा, एक्टिविटी स्टार्ट होगा और वहाँ से एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आएगा वो आपकी इंट रिक्वेस्ट कोड और यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड प्लस दूसरा रिक्वेस्ट कोड, यहाँ पे रिजल्ट कोड है सॉरी, एंड देन इंटेंट का डेटा यहाँ पे आएगा, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट we are mainly deal with this data. Actually we need this data, so we have to call the get extras and dot get intent. Get in a get method we have to pass the name of this particular data, क्योंकि यहाँ पे आप जो इमेज कैप्चर करोगे वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये मेथड कब चलेगा, ये मेथड तब चलेगा जब आप इस मेथड के चलने से जो कैमरा कैप्चर होगा, जब आप कैमरा ले लोगे, आप कोई इमेज रिसीव कर लोगे, तो इमेज को मतलब कैप्चर करने के बाद ये मेथड अपने आप चलेगा ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट. तो इसका मतलब ये हो गया, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मेथड का पर्पज़ ही यही था कि हम चाहते थे एक्टिविटी स्टार्ट हो और वहाँ से कुछ रिजल्ट आए, और वो रिजल्ट इस मेथड में आएगा अपने आप. ये मेथड अपने आप कॉल होगा जब वहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा, उसका रिक्वेस्ट कोड आएगा और उसका, बट वो रिक्वेस्ट कोड क्या आएगा, हमने ये जो रिक्वेस्ट कोड भेजा उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर इट. तो इफ़ द रिक्वेस्ट कोड, मतलब जो हमारे पास कैमरा रिक्वेस्ट है, इफ़ द कैमरा रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट कोड, मतलब अगर रिक्वेस्ट कोड के सेम होगा, मीन्स बोथ आईडी इज द सेम, क्योंकि यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई है वही रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा, देन उस इंटेंट का जो डेटा होगा, यानी कि हमारा इमेज यहाँ पे आ जाएगा एक डेटा वेरिएबल में, एंड वी हैव टू गेट इट. बेसिकली ये हमारा एक बिटमैप इमेज होता है, तो इसको हमें एक बिटमैप में ही टाइप कास्ट करना होगा. सो बिटमैप टाइप के ही वेरिएबल में हमने इसे टाइप कास्ट कर लिया, एंड देन हमारे पास जो इमेज व्यू है, जो हमने ऑलरेडी इसकी आईडी गेट कर रखी है, उस पर हम यहाँ पे सेट इमेज बिटमैप में ये बिटमैप का डेटा उठा के पास कर देंगे. दैट्स इट, नाउ योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड. सो ये पूरा प्रोसेस है. राकेश, बात समझ में आ गई या कोई दिक्कत? Yeah, it's clear only. So once we capture the image, that image will be replaced that image, right? Exactly. So we need to run this application. Okay. Actually, I'm going to run it. And what we have to do, we have to just apps and this yes. So now we are able to see my screen, application, sorry, mobile screen here. And what I am going to do, just see. And the very important thing which we have to do, actually earlier we are missing the same, when we hit the application, actually when we run the application, capture image. So now you can see it is opening the application actually, and you can see we are getting, but here we have to set the some permission for that. Here I am going to perfectly capture the image. Okay. Right. The permission in the main fish, right? Yes, and you can see when I set it here, so the image is set in here. Yes, actually how we have to do the permission हमें यहाँ पे application में कुछ ऐसे देना है. Just open the application. See, this is our first application. Sorry, this is my first application. So just select it and go to the app info, and app info में जाके here is a permission, app permission, right? So app permission, and then this is a phone call permission. This is the first application, or yes, phone call permission. वो सर इसके लिए परमिशन नहीं ऐड करनी पड़ेगी कैमरे के लिए? नहीं, कैमरे के लिए परमिशन तो ऐड करनी पड़ेगी ना, कल तो हमने किया था.
बिना ओपन परमिशंस। मैंने परमिशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये ऑल मतलब चल रहा है। परमिशन देना पड़ेगा दीपक। नहीं, वो रन टाइम पूछता है सर इसमें। नहीं वो तो ठीक है, वो जो पूछता है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हमने कल भी अभी परमिशन नहीं दिया था, ये एप्लीकेशन नहीं चल रही थी, राइट। सो इस तरह से हम यहाँ पे परमिशन दे देंगे। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे परमिशन ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है ना, तो इसलिए ये दोबारा नहीं मांग रहा है। बट सपोज करिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ से एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट। ये देखिए मैंने एप्लीकेशन को अभी यहाँ पे कैमरा का परमिशन ऐड कर दिया, यूज़र्स परमिशन करके ऐसे, राइट। और अब ये मेरी एप्लीकेशन है यहाँ पे। ये देखिए एप्लीकेशन को जैसे मैं कैमरा कैप्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कैमरा कैप्चर पे क्लिक करा, ये एप्लीकेशन फोर्सफुल्ली क्लोज जा रही है। सो क्या करूँगा मैं, देखिए एप्लीकेशन में जाऊँगा, ऐप इन्फो के अंदर जाके, और यहाँ से ये परमिशंस में जाऊँगा, और ये देखिए कैमरा की परमिशन के लिए आ रहा है रिक्वेस्ट, तो इसको मैं यहाँ से अलाउ कर दूँगा। अगर आप मैनिफेस्ट में यहाँ नहीं डालते हैं ना, तो अब वो परमिशन भी मांगता नहीं है, मतलब मांग नहीं रहा था, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे परमिशंस ऐड किया हुआ है तो मैनिफेस्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ से मैंने अलाउ कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन को दोबारा चलाऊँगा, और दोबारा चलाने के बाद यहाँ से कैमरा कैप्चर पे क्लिक कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली चल रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा मतलब इमेज कैप्चर के लिए।